Okay, here I go again. At the circle, we're trying to reinvent schools and after schools and teacher institutions across the country. We hope that they can innovate and reinvent so as to serve children from low income communities. We believe that schools and learning spaces are a very big institution when it comes to thinking about our societies and our communities and what is the future that we are working towards. We do this through a 2-year incubation, which is for entrepreneurs who want to start their own schools and after schools. They are committed and ready to dive in. It's a 2-year program for them. Another program is called the Circle Labs, which is a platform for short-term programming for people who want to learn about what does it mean to even reinvent, what are some ideas and best practices out there for children, how can we learn to design with and for children for futures, for the futures of school and after schools. We have short cohort based programs. We have innovation grants that we are able to give out to people who want to do a project or pilot in their community for children in low-income contexts. If they want to try out an exciting, innovative project, we help support that. We also have forums, which are 1 hour-ish conversations around exciting different ideas in schools, in after schools. We get people on board who are excited to talk about reinvention and innovation. And this conversation is a part of the Circle Labs. Today, we have 3 very exciting people who are going to be talking about Nayi Taaleem, which is essentially not a new idea at all. So even when we talk about reinvention, we hope that we are able to talk about the past. We hope that we are able to look behind us and see the rich cultural traditions and educational philosophies that have been in India for a long time, and what does it mean to talk about them today. As I was saying, 3 very exciting people are going to carry this conversation forward. We have Sujit Sinha, Pallavi Verma Patil, and Mukesh Digani. Mukesh is a circle entrepreneur from our 3rd cohort. He is building a very exciting school called Umang near Panipat, Haryana. Mukesh's school is actually a school that's built on democratic principles. मुकेश से मैं जब भी बात करती हूँ वो स्टूडेंट एजेंसी के बारे में इतने पैशनेट हैं that we feel that no one else is the best fit for heading this conversation apart from Mukesh. Who will walk us through a really visual and pleasing presentation on Nayi Taaleem. We hope that in the next few minutes, in the 30-40 minute mark, we are able to open for audience questions. Agar aapke koi bhi questions or any insights are coming up, you can feel free to put that in the chat while we are having the conversation, and we'll pick up audience Q&A in a few minutes as the conversation goes forward. Over to you, Mukesh. And thank you everyone for being here. Thank you so much, Amina, for this wonderful introduction for all of us. So, नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सबका स्वागत है आज के इस नई तालीम की मुहिम में। और जैसा कि अमीना ने कहा कि नई तालीम शब्द बिल्कुल नया लगता है कि नई तालीम, और अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो करीब करीब 100 साल होने जा रहे हैं जब इस नई तालीम की बात की गई थी। हम नए भारत की जब शिक्षा की बात हो रही थी तब गांधी, टैगोर और उनके बाद में जाकिर हुसैन कमेटी ने इस पे डिटेल में बात करेंगे हमारे आज के दोनों मेहमान। तो इस नई तालीम की संकल्पना की, और अनफॉर्चुनेटली मतलब हमने जो दिशा, जो ग्राम स्वराज की बात सोची थी गांधी ने, कि भारत का सपना जो देखा था कि स्वराज और ग्राम स्वराज का, जिसमें शिक्षा एक मुख्य भूमिका निभाएगी, उस सपने को पूरा करने पे, पर दुर्भाग्य से हमने उस रास्ते को नहीं चुना, और मैं कहूँ लार्जली नहीं चुना, और हम अपने विकास के, डेवलपमेंट के उस मॉडल पे गए जिसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण के द्वारा हमने सोचा था कि विकास होगा, और उसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा का भी हमने वही मॉडल लिया जिसे हम फैक्ट्री मॉडल के रूप में भी जानते हैं। और उसका क्या रिजल्ट है आज हम सबके सामने है। मैंने बहुत सारे डेटा उस पर सोचे थे आपके साथ शेयर करूं, पर फिर मेरा अमीना ने बात किया कि क्यों नहीं अब अपने स्कूल की बात करें, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और हम नई तालीम को कैसे देखते हैं।
तो उमंग में बेसिकली मैं शिक्षा से करीब पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ, और मुझे जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात लगती थी कि जब बच्चा स्कूल में आ रहा है, जिन क्यूरियोसिटी के साथ आ रहा है, जिन सवालों के साथ आ रहा है, बड़े होते होते वो सवाल कहाँ गायब हो जा रहे हैं। दूसरा, किताबों और सिलेबस का बोझ इतना है और उनका प्रेशर कंपटीशन के चलते कि उसके कोई क्रिएटिविटी का या उसकी अपनी कोई जॉय का स्पेस उस पूरी एजुकेशन सिस्टम में बसता नहीं है। और साथ साथ हम कहें कि इस पूरे कंपटीशन और कंपैरिजन के दौर में बच्चों की अपना जो कंपैशन है, या हम कहें कि जो मानवीय मूल्य हैं, वो कहीं बड़े होते होते गायब हो जाते हैं। उस पूरी शिक्षा की इस पूरी मुहिम में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आज हम जैसा इंसान देखते हैं, आज जैसा हम समाज देखते हैं, ये इसी हमारी स्कूली शिक्षा की जो बुनियाद है उसका असर दिखता है। तो मैं इस तरह से भी देख रहा था कि आज भारत में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसके बड़े रोल में हम शिक्षा को भी देखते हैं। जिस डेमोक्रेसी को हम भारत की सबसे बड़ी मतलब लोकतांत्रिक देश के रूप में देखते हैं, तो उसमें लोकतंत्र का क्या हाल है, इस पर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज का मुख्य मुद्दा वो नहीं है। पर उसके रिजल्ट के तौर पर अगर हम देखें, स्पेशली मैं हरियाणा के संदर्भ में बात करूं, तो हमारा राज्य आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, अनएम्प्लॉयमेंट में। 35% यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब परेशान हो रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेके कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ मौजूद है। और अगर जो पढ़ लिख गए भी हैं और जिसे हम सक्सेस का पैरामीटर मान रहे हैं, उनका अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, तो सुसाइड रेट करीब 1 लाख लोग अभी सुसाइड करते हैं इंडिया में हर साल। और उसमें से एक बड़ा नंबर करीब करीब 30% से ज़्यादा यूथ सुसाइड करता है अलग अलग कारणों से। जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी से लेके और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, वहाँ भी यूथ जो है एडमिशन के बाद भी सुसाइड करता है। तो कैसा ऐसा क्या हमारी शिक्षा के बीच में मिसिंग पीस है, जिसके चलते कि हालात यहाँ से ऐसे बनते हैं कि हम सफल होके भी असफल हैं, और जो हमारी सफलता के पैमाने हैं वो हमारे समाज को किस दिशा में ले जाते हैं। सोनम वांगचुक को आजकल आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली आ रहे हैं, और किस वजह से आ रहे हैं वो मतलब बहुत बड़ा विषय है कि पर्यावरण जैसे मुद्दों को जो अगले 20 साल में हमारी जो दुनिया है, जो विकास का ये पूरा मॉडल है, वो हमें कहाँ ले जाने वाला है, उस पर अगर हमारी शिक्षा हमें सोचने को मजबूर नहीं करती, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि हम एनवायरनमेंट साइंस को पढ़ते हैं पर एनवायरनमेंट के ऊपर हम अब कहीं भी सजग नहीं होते। तो मैं चाहता हूँ कि आज नई तालीम में जो 4 चीज़ों पे हम लोगों ने बात की, कि क्यूरियोसिटी, कंपैशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्यों बच्चों के साथ नहीं आगे बढ़ता है, उस पर हमारे बीच आज के जो 2 विशेष मेहमान हैं, वो ज़रूर इस पर विस्तार से बात रखेंगे। तो मेरा उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा-सा परिचय आपको देना चाहता हूँ। असल में तो मेरी भी मुलाकात पहली बार हो रही है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम नई तालीम के विशेषज्ञों के रूप में, या जिन्होंने नई तालीम पर बहुत अच्छे से काम किया हो, ऐसे कुछ लोगों को मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, तब मुझे कुछ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ही इंट्रोड्यूस किया प्रोफेसर सुजीत सिन्हा से। और ये अपने आप में एक बड़ी ऑनर की बात है कि जब वो प्रोफेसर्स के बारे में बता रहे थे, सुजीत सिन्हा के बारे में, वो कह रहे थे कि उनको अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, या जिनकी क्लासेस उन्हें अटेंड करना जो सबसे प्रिय लगती थी, तो वो प्रोफेसर सुजीत सिन्हा थे। तो प्रोफेसर सुजीत सिन्हा जो हैं, उनकी अगर हम बिगनिंग देखें, तो हाई स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने आदिवासी कम्युनिटी में अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत की। उन्होंने एमएससी की आईआईटी कानपुर से, और पीएचडी की केमिस्ट्री से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की एटी बेल लेबोरेटरी से, और उसके बाद वो वापस भारत आए, और करीब पिछले 20 साल उन्होंने फिर रूरल डेवलपमेंट में वेस्ट बंगाल पे फोकस किए, वहाँ की एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे। और 2010 से सुजीत सर ने एज ए फैकल्टी मेंबर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एमए डेवलपमेंट और एम एजुकेशन प्रोग्राम्स में। और उनके एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ साथ उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट किया। विशेष रूप से वो गांधी और टैगोर की फ़िलॉसफी को आज के रिलेवेंस में क्या उसकी उपयोगिता है, उस पर वो मतलब गहरे से उन्होंने बच्चों के बीच में बात रखी। उनके साथ हमारे बीच एक और हमारे साथी हैं, पल्लवी वर्मा पाटिल। उन्होंने भी
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम किया और अभी करंटली वो लीडिंग कर रहे हैं अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट एजुकेशन स्ट्रेटजी। और उनका फोकस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉल्ड जल जंगल जमीन इन क्लासरूम। इसके साथ साथ उन्होंने विप्रो अर्थियन जूरी मेंबर के तौर पे काम किया और प्रायर इन टू दिस, और वो फैकल्टी मेंबर जैसे मैंने बताया कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में 11 साल उन्होंने काम किया और वो एक कोर्स को पढ़ाती थी जिसका थीम था जस्ट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव फ्यूचर एंड गांधी एजुकेशन इन द पीजी एंड यूजी प्रोग्राम्स। साथ साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया द रागी प्रोजेक्ट को, नई तालीम अर्बन फार्मिंग एक्सपेरिमेंट बेंगलोर में 2 सालों के लिए 2017 से 19 के बीच में। और पल्लवी को फाउंडर हैं एजुकेशन इनिशिएटिव लिविंग यूटोपिया, और वो साथ में प्रोफेसर सुजीत के साथ काम कर रही हैं 2017 से। और वो एक कोर्स चलाते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स, उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। तो मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए अपने दोनों मेहमान साथियों को, प्रोफेसर को इनवाइट करता हूं कि वो आज की प्रेजेंटेशन और नई तालीम पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करें। और इस बातचीत के बाद फिर हम मंच को खुला करेंगे कि आप लोग सवाल ला सकें। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी पार्टिसिपेंट आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देर ना करते हुए आप दोनों का स्वागत है, और आगे आप जिस तरह से बढ़ाना चाहें। जी। Thank you, Mukesh. I just want to acknowledge that I am so happy to see some of the names, some of our friends, some of the people we know in the participant list today. I also want to call out to Sushma Sharma. I can see her in the participant list. And today, in some of the pictures that we will show, one of the pictures is from her school. And I'm just going to start the presentation. I can speak both languages, so I will interchange and speak, so can Sujit. So let us know, please message. We'll be reading it while we are presenting. Sounds good? We'll start. Okay. Just going to share the screen. Yep. Sujit, mute. You're muted. So Pallavi, there is a request from some audience side, because a few come from the Haryana and our rural background sides. If is it possible, can you speak in Hindi or the bilingual? That will be more Yeah, helpful. we can. Yeah. Thank you so much. तो can you hear me? Yes, sir. Fine. Yeah. तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आप लोग? चैट में लिख सकते हैं। तो ये पिक्चर आज से 25 साल पहले ली हुई पिक्चर है। ये वेस्ट बंगाल में यस, तो वेस्ट बंगाल में कलकत्ते के पास गांव में मैं काम करता था। तो उस समय हम 10 से 16 साल के लड़के लड़कियों का ग्रुप बना रहे थे। सो वी वर फॉर्मिंग दिस youth groups of 10 to 16-year-old boys and girls, and we called them किशोर किशोरी वाहिनी KKB। तो उन लड़के लड़कियों ने हमको आके कहा कि हमारे हरेक के घर में हम मुर्गियां और हंस पालते हैं, और हम खाते भी हैं, बेचते भी हैं, और अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाता है, if some relative comes to our house, then it is important to give them chicken. But many of these chickens and ducks, which are so important in our livelihoods, sometimes there is an epidemic, और सबके सब गांव के जितने भी मुर्गी हंस सब मर जाते हैं। तो हमने कहा तो तू क्या करते हैं लोग इसके बारे में? तो कहता है कुछ वो है डॉक्टर हैं पशुओं के, वो आके एक सुई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, but it's quite costly. They charge 10 rupees per chicken, and they don't come to our houses. हमारे तो 10, 15, 20 ही हैं, हमारे घर नहीं आते हैं वो लोग। तो हमने कहा कि अरे तो तुम ही लोग इंजेक्शन दे दो। तो बच्चे लोग कहे हम कैसे दे, वी आर ओनली किड्स, हाउ कैन वी इंजेक्ट? तो हमने कहा अच्छा ठीक है, सोचो जरा। देन सम ओल्डर चिल्ड्रन केम एंड सेड प्लीज टीच अस हाउ टू डू इट एंड वी विल डू। तो हमने, ये 8 गांव की बात है, 8 विलेजेस, तो हमने उनको सिखा दिया कैसे मुर्गियों को इंजेक्शन देते हैं।
फिर ये बच्चे लोग ने मिलके प्लान बनाया। ये तो बड़े बड़े गांव है, 300 to 800 फैमिलीज, तो बहुत सारे मोहल्ले हैं। सो द चिल्ड्रन देन divided themselves up and they picked up each mohalla and they calculated how many families are there, how many chicken, poultry, how much injection they will need, and we supplied them. Then these children formed a group and went to each mohalla in the evening and told the people कि कल सुबह आप अपने मुर्गी हंस मत छोड़िए, हम सुबह आके इंजेक्शन दे देंगे। सो द चिल्ड्रन पीपल वर अमेज्ड, और कुछ लोग हंसे भी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम और सबको पकड़ के, आप यहाँ देख रहे हैं, दे आर एक्चुअली इंजेक्टिंग, सुई दे रहे हैं सब। तो all the chicken and poultry were immunized, and then there was no death that year. So the next year, we told them that you should charge for the medicine. वो जो डॉक्टर जो है वो तो 10 रुपया पर चिकन लेता है। इन लोगों ने कहा कि प्राइस विल बी अबाउट, दिस इज 25 years back, so हाँ, 8 आना, 50 पैसा। So the people willingly gave that money, and the third year they said कि you should pay us some fee also. So the families willingly did it, and the children started getting some pocket money also. And in the whole 8 villages, there were hardly any deaths of poultry. But while doing this, the children started asking a lot of questions. That what is this disease? How does it spread? और ये जो इंजेक्शन दे रहे हैं इसमें क्या है, ये दवाई क्या है, ये इस रोग को कैसे खत्म करती है, और ये दवाई किसने आविष्कार की है, और ये जो हम मुर्गी हंस को ये दवाई दे रहे हैं, इम्यूनाइज कर रहे हैं, इसके साथ मनुष्य को जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसका क्या संपर्क है। सो यू सी द चिल्ड्रन आर नॉट ओनली डूइंग समथिंग विच इज making their livelihood secure, which is solving one of the daily problems. Not only are they sitting and planning how to do it and executing it, they also have a lot of questions which is related to what they study in their classroom. So I will, Pallavi, next slide. There is a line coming which I don't know who's. Yeah. Right. Okay. So sometimes we say कि ये एक बर्नार्ड शॉ का हमारा बहुत फेवरेट कोट है, जो कहता है कि यू सी थिंग्स एंड से व्हाई। जो चल रहा है उसी को देखकर आपके इतने प्रश्न है कि क्यों। बट आई ड्रीम थिंग्स दैट नेवर वर एंड आई से व्हाई नॉट। पर मैं तो सपना देखता हूँ ऐसे चीजों का जो आज नहीं है, और मैं कहता हूँ ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमारी ये नई तालीम उसी तरह है, इसका एक इतिहास जरूर है, पर हम आगे की बात कर रहे हैं। और नाउ इट्स पल्लवी। हाँ, तो मैं और सुजित थोड़ा ऑल्टरनेट करते हुए बताएंगे। जब अमीना और बाकी साथियों ने हमें कांटेक्ट किया तो हम सोच रहे थे कि हम जो इतने साल से जुटा रहे हैं, जो हम समझते हैं नई तालीम को, ये जो हम सोचते हैं फॉर टुडे एंड टुमारो। तो ये वर्ड मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि हाँ, एक इतिहास है, पर उसको रीइन्वेंट कैसे करें और क्या चल रहा है और भारत में क्या हो रहा है और भारत के बाहर क्या हो रहा है, वो हम पिछले 12-13 साल से, शायद ज्यादा से, कलेक्ट करते आ रहे हैं। तो वो ही आज का प्रेजेंटेशन रहेगा, हम वही आपको दिखा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू शो यू थ्रू पिक्चर्स। सो थोड़ा ऐसा लगेगा दैट इट्स अ रश्ड प्रेजेंटेशन, जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, बट वी विल कम बैक ऑन Q&A showing the pictures. So my first thing is, our one-line definition of नई तालीम is education through प्रोडक्टिव वर्क फॉर स्वराज। ये काम के जरिए शिक्षा, किसके लिए? स्वराज के लिए। ये बात रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम और शिक्षा अलग अलग नहीं है, काम के जरिए है। इट इज एजुकेशन थ्रू वर्क। तो व्हाट प्रोडक्टिव वर्क? तो जब जाकिर हुसैन कमेटी 1938, किसी ने बोला चैट में 1980s में नई तालीम है, 1937 में गांधी बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि नई तालीम, नई शिक्षा, न्यू एडुकेशन कैसी होनी चाहिए नए भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए। तो उन्होंने एक कमिटी बनाई ऑफ लॉट ऑफ एडुकेशनिस्ट, और वो कमिटी ने 1938 से ही बोला कि 3 तरीके से हम काम को देख सकते हैं। एंड मैं ये बात इसलिए ज्यादा बोलना चाहती हूँ कि बहुत टाइम तक हमारा एक मिथ है नई तालीम को लेके कि सिर्फ चरखा चला के या हाथ का काम करके हम ये शिक्षा पाते हैं।
But I want to break that myth. And I want to say that from 1938, just 1 year after Gandhi's proposing and giving this challenge, there were 3 mediums through which you could learn. आजकल के लैंग्वेज में, पार्लेंस में हम कहते हैं सोशल साइंस या सोशल स्टडीज, और हम इकोलॉजी, मैं एक एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, हम इकोलॉजी को एक मेन स्टे बना के एडुकेशन कैसे करें वो उस पे काम करते हैं. बट I'm trying to show you 1938 se they were discussing it's not just craft. And often this is such a lovely photograph. I had to blur the face of the child, but it was such a lovely face. हंस के वो मुझे चरखा चलाने को बोल रहे थे. I don't know why there's a red line on the screen. I can't remove it if Amina can. Pallavi, if you can quickly stop sharing and then share again, it will be gone. Okay. Yeah. And then we'll disable annotations. Okay. Thanks. Yeah. Okay. So here we are in this lovely photograph. This is from Sushma School only, who's here in the audience. So a lot of people imagine कि ये चरखा चला के, तकली चला के उसकी शिक्षा पाना ही नई तालीम है. And we have been trying to break this myth. क्योंकि बेसिक क्राफ्ट 1938 में ही लिख के बोला गया है कि स्पिनिंग एंड वीविंग तो एक है, but there were other crafts, carpentry, एग्रीकल्चर. मैंने काफी काम किया है फूड एंड एग्रीकल्चर को लेके एज अ थीम, जहां पे आप स्कूल एजुकेशन को री इन्वेंट कर सकते हैं. ये सारे आइडियाज एक्चुअली मुझे शुरू से ही 1938 की किताब से भी मिले. और फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डनिंग, लेदर, चप्पल बनाने का काम, कोई भी काम, लेकिन मेन चीज रही है कि आपका कॉन्टेक्स्ट से काम आना चाहिए, आपकी ही मिल्यू से आना चाहिए, आप ही के परिसर से आना चाहिए. इट कैन नॉट बी समथिंग विच इज नॉट ग्रोन. So once I was trying to do something around cotton in one school in Bangalore, and somebody suggested कि cotton क्यों कर रहे हो इतना, तुम वहाँ के इतने सारे weaving cooperatives हैं, वहाँ से तुम कुछ सोचो. Why copy paste an idea from Nagpur, Wardha to Bangalore? Try to do something from that situation. So that is the key. Like contextual क्या होगा. एंड दिस वाज अ लवली फोटोग्राफ. एक किसी की पीएचडी थीसिस से मुझे मिला. उन्होंने देखा कि 1948 में ही फूड ग्रोइंग वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव वर्क इन स्कूल. और ये आनंद निकेतन स्कूल का है, जिनकी प्रिंसिपल एंड आई थिंक कुछ साथी यहाँ इसी ऑडियंस में मौजूद हैं. तो 1940 ऑनवर्ड्स नई तालीम स्कूल के अंदर देखिए किस तरह के कार्यक्रमों को वो वर्क मानते थे. इसके थ्रू शिक्षा थी. वर्क वॉज नॉट सेपरेट फ्रॉम शिक्षा, इट वॉज थ्रू दिस दैट दे वर कोरिलेटिंग और शिक्षा की बात कर रहे थे. क्लीनिंग तो नंबर 1. यू नो गांधी वॉज ऑब्सेस्ड विद क्लीनिंग एंड सैनिटेशन. क्लीनिंग वॉज नंबर 1. स्टूडेंट असेंबलीज, इट्स अ फैंटास्टिक. जो लोग डेमोक्रेटिक स्कूलिंग में काम करते हैं, असेंबली इज सच अ इम्पॉर्टेंट स्पेस टू हैव डिस्कशंस, टू अंडरस्टैंड सिटीजनशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड्स. अर्ली ऑन 1940s में स्कूल लेवल बजटिंग. मैं और सुजित जो है आजकल पार्टिसिपेटरी बजटिंग पे कुछ लेक्चर्स देते हैं, जहां पे बच्चे आर सो इम्पोर्टेंट इन डिस्कसिंग कि किस तरह का उनके नेबरहुड का बजट होना चाहिए, कहाँ पे खर्च होना चाहिए. इसकी शिक्षा नई तालीम स्कूल में 1940s में चली आ रही है. ऑर्गेनाइजिंग एंड कुकिंग मील्स, दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स. कि ये कुकिंग को लार्ज स्केल में ऑर्गेनाइज करना ही एक शिक्षा है. इट इज अ लॉट ऑफ वर्क, इट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, and it is a lot of planning and execution. But what I find very interesting is that there is a local biodiversity ka already curriculum that was there in India in the Nai Talim schools. आप observation कीजिए, आप local geology देखिए. अब तो मैं बहुत conservation NGOs से linked हूँ, and almost every one of them has a first program. For example, I enjoy a program called Season Watch. It's a conservation foundation, nature conservation foundation program where children go every season, observe, collect data, and they call it citizen science. Now look at this. Grade 1, which means 7-year-old, 6 to 7-year-old. This is Zakir Hussain committee syllabus. I've just created a screenshot and shown you. This is what they wanted the child to do. Observe the color of trees at different times of the year. So exactly what Season Watch is doing today in schools, right? What direct finding with reference to the sun, the seasons of the year. So this kind of nature education, Nature Watch, was very, very inbuilt in Nai Talim schools in 1940s.
And Sujit and I really like it. We picked it up from this Devi Prasad book, which was written in 1988. Assessments, we get a lot of questions. अरे ऐसी शिक्षा है तो assess कौन करेगा? किस तरह की बातें कर रहे हो? एग्जाम कहाँ होंगे? What we like from this is, and I have highlighted it, पहले तो assessment बच्चा खुद करेगा. First, child is also wondering कि उसकी खुद की हेल्थ कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे पढ़ रहा है, उसका एप्टीट्यूड ऑफ फ्यूचर स्टडीज क्या है. एंड देन द असेसमेंट इज नॉट जस्ट एकेडमिक एज इज एविडेंट, वो तो तरह तरह की चीजों को असेस कर रहे हैं. सो अब जब हम आज के जमाने की बात करते हैं कि आज के जमाने में हम किस तरह का काम इंक्लूड करें, तो वन मेजर सॉलिड वर्क जो ऑलरेडी हुआ है इंडिया में, वो एक 2005 एनसीएफ के अंतर्गत हुआ था. एनसीएफ 2005 ऑलरेडी पुट आउट अ पोजीशन पेपर, वर्क इन एजुकेशन नाम का है. वो अभी भी अवेलेबल है एनसीईआरटी वेबसाइट पे, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. वी डू नॉट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी अवेलेबल, सो प्लीज डाउनलोड एंड कीप इट, बिकॉज it has done that work for us. It has listed 105 work activities under 10 broad themes. बट जब हम सुजित मोस्टली जब उन्होंने सेटअप किया था ये गांधीयन एजुकेशन का स्पेस अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, जिसके स्टूडेंट्स के थ्रू हम आज आए हैं आपसे बात करने, जब उन्होंने सेटअप किया था, हम लोगों ने वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. पहले से भी थोड़ी जानकारी थी, इंक्लूडिंग पीपल इन दिस फोरम टुडे, एंड वी केम अप विद अ लिस्ट. एंड द लिस्ट इज 9-10-10ish 10 पॉइंट समझ लीजिए, on various aspects. One biggest one is ecology, like natural resource management कैसे स्कूल में सिखाया जाए, बच्चे अपने ही जल जंगल जमीन को कैसे कंजर्व करें, उसकी केयर कैसे लें. Then agriculture, energy, water and sanitation, waste, health and nutrition. Construction was a big part of alternate rural development organizations. उसका काम स्कूल के अंदर कैसे लाएं. Bicycle and pedal power. एंड लास्ट वॉज लोकल सोशो इकोनॉमिक सर्वे, वो मैं आपको थोड़े फोटोज भी दिखाऊंगी. बट बिफोर आई बिगिन आई वॉन्ट टू से एक चीज पक्का करनी है. नई तालीम, ऑफ कोर्स वी नो, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, ऑल एडुकेटर्स नो इट इज अ वेरी गुड पेडागोजी. बहुत अच्छा काम है. जो हाथ से करके देख रहा है आपको तो ज्यादा ही रिटेंशन होगा, उसमें तो कोई मतलब देयर इज नो टू वे अबाउट इट. बट वॉट वी आर ट्राइंग टू से इज, बट फॉर वॉट इज द पर्पस. मैंने इसलिए इसको रेड में हाईलाइट किया है. एडुकेशन जो हमारी वन लाइन डेफिनेशन है, एडुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क फॉर स्वराज, स्वराज के लिए. इस स्वराज या आइडिया ऑफ अ गुड सोसाइटी, इसको हमने काफी टाइम से इस पे और बहुत लोगों से जुड़ के, नॉट ओनली इन इंडिया, अब आउटसाइड इंडिया ऑल्सो बहुत लोग हैं जो तरह तरह से इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा समाज क्या होगा. उसके हमने कॉन्टर्स, उसके हमने कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ रखे हैं. और लास्ट में देखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रूरल एंड अर्बन इंडिया, हम कह रहे हैं कम्युनिटीज, राइट. हम छोटे छोटे कम्युनिटीज किस तरह से ऐसे बने जहां जस्टिस की बात हो, इक्विटी की बात हो. ये हमारा सपना है, यू नो. पर इस सपने के लिए, इस सपने को सजाने के लिए हम एक कोर्स चलाते हैं, उसका नाम है लिविंग यूटोपियाज. वो बात आज हम नहीं रख सकते इतने छोटे टाइम पे, पर हम ये कहना चाहते हैं उस समाज को पहुंचने के लिए वो शिक्षा जो हाथ के जरिए हो, वो ही नई तालीम है हमारे हिसाब से. तो ये बात को हम कह के आई जस्ट शो यू एक फ्रेमवर्क बनाया था. और फ्रेमवर्क पे मैं थोड़ा जल्दी से जाऊंगी. पहली बात है इमीडिएट यूज. फ्यूचर में आप इंजीनियर बन जाएं वैसी बात नहीं है. अभी आपको क्या जरूरत है, उसकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, वो है नई तालीम. ये जो सेकंड पॉइंट है ना, दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ नई तालीम. और यहाँ पे इतना क्रिएटिविटी है टीचर का, दैट आई हैव आल्सो ट्राइड इट इन अर्बन स्कूल, कि आपने काम करके एक स्किल दिखाया है, बट वो जब करिकुलम से जोड़ते हैं तो वो शिक्षा में उतरता है. और वो काम रेडीमेड नहीं होता है. अगर आप स्पिनिंग या वीविंग का काम करा रहे हैं या खेती का काम करा रहे हैं, उससे आप एकेडमिकली क्या क्या सीख सकते हैं, वो बहुत मूल काम है. नई तालीम शिक्षकों ने काफी इस पे काम किया है. और इंडिया में लकीली फॉर अस जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, काफी काम हो चुका है दैट वी कैन यूज, कॉपी, रिकॉपी, उसको सजा सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं. सो दैट इज अ गुड थिंग. एक इम्पॉर्टेंट लोकल एंड लाइवलीहुड इशू होने से वो बहुत जमता है नई तालीम. जैसे सुजित ने बताया, वो जो पोल्ट्री का कर रहे थे, वो तो उनका लाइवलीहुड का ही इशू था. इसलिए उसकी शिक्षा, उसको कैसे बेहतर करना, दैट इज वेरी क्रूशियल.
ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्कूल में हो गया ऑन फैंटास्टिक, यू नो, इट हैज टू स्पिल आउटसाइड द स्कूल. तो दैट फॉर अस दैट इज ऑल्सो अ वेरी की थिंग. और आजकल इतना क्लाइमेट एंड क्लाइमेट रिलेटेड क्राइसिस में अगर इकोलॉजिकल इश्यूज आप नहीं उठा रहे हैं अपने परिसर में, अपने कम्युनिटी में, then that does not make sense. So for Nayi Talim to be reimagined for today, ecology, eco-sensitivity has to be a very key factor. ये छठा जो है ना, ये इस पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है. फन एंड डेमोक्रेटिक. ये बहुत बार लोग कहते हैं नई तालीम इतना बोरिंग है, दिन भर चरखा ही चलाते रहते हैं, ये बहुत काम कराते हैं, ये सफाई कराते हैं, ये कराते हैं. मैं जब भी सेवाग्राम स्कूल गई हूँ, मुझे तो कभी भी, मतलब मैं तो कभी भी बोर नहीं हुई. मैं तो ऐसा विजिटर भी, मुझे इतना मजा आता था. और मैं अपने भी जिस बच्चों के साथ काम करती हूँ, मतलब कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बोरिंग, चोर्स रिलेटेड, हॉरिबल, क्या क्या खींच खींच के ले जा रहे हैं खेत पे, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा. तो ये फन एलिमेंट, गाना बजाना, अभी पता चला सर्कल के पास ही इतने गाने हैं. तो मतलब टीचर्स का रोल है कि मतलब मजे से करें ना, खुश होके करें. एंड डेमोक्रेसी तो विद इन ग्रुप्स, विद इन स्कूल, विद इन टीचर्स, इस पे आंख रखना, टू कीप एन आई ऑन दिस, इज सच एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ अ गुड सोसाइटी. एंड इफ यू हथौड़ा मार के या गुस्सा करके या इसके लिए 5 मार्क्स देंगे इसलिए आप ये करिए, दिस इज गोइंग टू डिफीट द पर्पस ऑफ नई तालीम. कम्युनिटी की नीड से लिंक्ड है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं. तो आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम राइट नाउ, बट आई स्टार्ट शोइंग यू पिक्चर्स. दिस इज द क्यूटेस्ट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स. हाँ, दिस इज क्लास 5 in Chennapatna in Karnataka. Their teacher told them under a very cute program called Nalli Kali. It was supported by an organization called Prajayatna. It was a government elementary school. जहां पे बच्चों को बोला गया था अपने गांव में जाके ढूंढ के आओ कितने पक्के घर हैं, कितने कच्चे घर हैं. एंड दे हैड टू गो एंड डू अ सिंपल सर्वे. एंड वो जो ये लेफ्ट साइड में वो जो लड़की विद 2 चोटीज जो जिसके हाथ में वो है, शी वॉज द लीडर एंड एवरीबडी हैड टू फॉलो हर. एंड शी वॉज ऑब्जर्विंग एंड टेलिंग दिस स्मॉल ग्रुप कि देखो इसके पास टिन का पतरा है, इसके पास नहीं है, इसके पास टॉयलेट है, इसके पास नहीं. शी ब्रॉट दैट डेटा बैक. आई डोंट नो वेदर द लास्ट वो जो आपको राइट में दिख रहा है वो लड़के का कुछ से था इस सर्वे में, बट शी ब्रॉट द डेटा बैक to the classroom. It was good data. That data can be used, This is the data she has seen as an observation with a small group of children. And that is the kind of work we imagine Naitali. कि इस तरह के socio-economic surveys of your own community, of your own village, of your own neighborhood, where children play a role of not just data collection, but they start analyzing कि कितने घर हैं जिनके पास गांव में पक्का छत नहीं है. एंड इससे हम आगे बात बढ़ा सकते हैं. दिस इज अ स्कूल. इसमें आई थिंक 600 स्कूलों को बोला गया था कि आप बॉटल भर के लेके आइए अपने अपने घरों से, और वो घर में केमिस्ट्री लैब में स्कूल में आके हम वाटर टेस्ट करेंगे. दिस वाज एन एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये 2015 का पिक्चर है. और एक एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन असम गुवाहाटी में, दे हैड सपोर्टेड दिस वर्क. सो स्कूल का केमिस्ट्री लैब है, उसमें कुछ कुछ आप सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं. बट सपोज आप अपने ही वाटर क्वालिटी टेस्ट करवा लीजिए और केमिस्ट्री को लिंक्ड विथ योर लाइफ, लिंक्ड विथ करिकुला, कुछ काम ऐसे करा लीजिए. सो दिस इज अ रियली गुड एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे जगह हैं इंडिया में जहां फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है. सो कैन फ्लोराइड टेस्टिंग हैपन इन स्कूल्स? Can you use the basic science, your own apparatus, and just bring water bottles and test? So that, according to us, is Naitali. This is I'll show you small clip of this film. ये काम हुआ है प्रधान के गांव. प्रधान एक एनजीओ है, उसके गांव में, मध्य प्रदेश से हुआ है. इसमें झुरनी घगरा नाम के एक गांव है जिन्होंने बच्चों ने एक बायोडाइवर्सिटी वॉक किया है. ये काम होने के बाद मैं सुन रही हूँ कि जो उनको फॉरेस्ट में एक्सेस था वो अब शायद उतना नहीं है. दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंटेड वर्क डन बाय चिल्ड्रन ऑन हाउ डाइवर्स देयर फॉरेस्ट इज. Can you hear the sound? Pallavi, you have to share sound. फिर से स्टॉप करूं? हाँ. And when you go on share again, on the right side, you'll see a share sound option. Yeah, right.
Can you see my screen? Yeah. So this also, respecting your elders कि उनको knowledge है, पूजा से start करना या some kind of ritual से. And I'll just tell you थोड़ा आगे जाके कि लोकल एनवायरनमेंट ढूंढना, उनका फॉरेस्ट कैसा दिखता है, झरना कहाँ है, बाउंड्री अपने गांव की. शाम को 7 किलोमीटर करके आए हैं, ये एक टीचर हैं, सारी पत्तियां लेके आए हैं, 35. और एंड में जो पत्ते कलेक्ट करके लाए हैं उसी पे ही खीर खा रहे हैं, और वो खीर भी कोदो कुटकी की खीर है. सो जनरली आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि कुछ भी इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, पैसे भी नहीं लगे, अपना ही जंगल नहीं पहचानते हैं. जंगल के अंदर स्कूल है पर स्कूल से बाहर नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो समझ में नहीं आता जंगल से हम क्या सीख सकते हैं. बाउंड्री देखी नहीं है, मैप देखते हैं पर उनको अपनी नॉलेज है कि किस तरह का उनका गांव है, वो कभी क्लास में आता ही नहीं है. तो ये दोनों लिंक करने का काम हमारे लिए इमेजिनेशन ऑफ नई तालीम है. ये लास्ट की 2 स्लाइड बोल के मैं सुजित को दूंगी. ये एक काम मैंने किया था बैंगलोर में, और मैंने भी आनंद निकेतन से सीखा और बाकी एनजीओ से भी सीखा जो ये काम करते हैं स्कूल में. मैंने ये रागी जो नाचनी कहते हैं, जिसको मंडुआ भी कहते हैं, ये कर्नाटका का एक स्टेपल सीरियल है. दिस इज स्टिल यूज्ड वेरी हेविली इन मेनी ऑफ द एवरीडे फूड्स. एंड दीज चिल्ड्रन of an alternate school called Purna Learning Center of class 5, 6, and 7 were asked, ki, will you farm? And actually, they were not really asked. We manipulated them into asking and saying yes. And then we decided ki kaise kare kheti. We did not know how to do the kheti. We were all urban people with no land. And the only person who had land was the school staff. So wahin se hi hierarchy टूटने लग गई. क्योंकि all of us were urban migrants with no land. The one with the land was not part of the teaching faculty, तो उसको teaching faculty में घुसाओ. She taught us how to do so many things, and we learned many skills of natural farming जो हम में से किसी को भी नहीं पता थी. Traditional भी नहीं पता थी, natural भी नहीं पता थी, sustainable भी नहीं पता थी. So over the course of 2 years, we learned many skills. Fine, we got 20 kg ragi. Yes, great. That is a project. It got an activity-based project. I called it Naitali. But it was almost like a bet with Sujit, because I wanted to say कि ये सब काम तो rural schools में possible है, urban schools में possible है कि नहीं. I mean, where is Naitali in urban schools? And then I realized that the teachers are so fantastic. I told them this whole Naitalim idea that it is correlation. Activity को correlate करना है learning से. This is class 5 maths. This is class 5 geography. This is some kind of ecology. We got a ecologist to come to the farm to say कि farm के अंदर क्या insects होते हैं. On the right, you can see some English. So all sorts of academic subjects correlated. So these were the kind of things that excited, and over 2 years, we actually taught everything possible, all our goals of English, maths, science, social science, who has the intelligence of the mind and the body, why is there a caste division, why are people so anti hands-on work, all kinds of issues around Dalit activism, around irritation with Gandhi, everything came out in the school. So for me, that is Naitali. I'm going to now hand over to Sujit because he has some more examples to share.
So please go ahead. You are muted. हाँ, तो अगले 5 मिनट में आपको जल्दी से कुछ फोटो दिखाता हूँ। ये ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग ये पहले भी और अभी भी एक एनजीओ है जो एकदम 10 साल के बच्चों से लेके ऊपर तक तरह तरह के कलम बांधना सिखा रही है डिफरेंट ट्रीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये दाहिनी तरफ जो एक वो बेर का ट्री है उसमें ये सब कलम बांधे गए हैं। तो ये तो अ, बहुत इजी भी है। हम पहले बच्चों ने कहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, हम तो छोटे हैं, बट मेनी चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डू ग्राफ्टिंग ऑफ वेरियस फ्रूट ट्रीज। हाँ, नेक्स्ट। ये देखिए, ये लोग पपीता का नर्सरी बना रहे हैं। यहाँ बीज दे रहे हैं, यहाँ मंच बना के उस पर पानी दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वही पपीते के चारे को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। सो द होल साइकिल, जो उनके जो वेजिटेबल का नर्सरी बनाना, तरह तरह के जो जिनका डिमांड है, लोग चाह रहे हैं, उनके बना के डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट वन। ये देखिए कंपोस्ट बना। अब वो एक नॉर्मल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और जो लिक्विड मैन्योर जो कहते हैं आजकल तरह तरह के नाम से, ये सब छोटे छोटे बच्चे भी बनाना सीख रहे हैं। नेक्स्ट। सीड बॉल, ये है कि वो एक मट्टी का बॉल बना के उसके अंदर बीज घुसा के, तरह तरह के पेड़ होते हैं जो आप वो मट्टी के बॉल को फेंक दीजिए, वो जब सीजन आएगा धीरे से उससे पेड़ निकलेगा। ये बहुत सिंपल तरीका है पेड़ को बढ़ाने का, एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग हाउ टू डू दैट सीड बॉल ट्रेनिंग। नेक्स्ट। एजोला नाम का एक बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है। ये एक फर्न है जो जल्दी से ग्रो करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है। तो यहाँ उन्होंने गड्ढा बनाया, एजोला थोड़ा दिया, उसको पानी दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारा एजोला हो गया, इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये मुर्गी का भी खाना होता है, लैंड में भी दे सकते हो, तरह तरह से काम होता है। ये बहुत अच्छी एक बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है। थोड़ा सा हेल्थ हाइजीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए, इस इलाके में ये जो हैंडपंप, जिसको वहाँ ट्यूबवेल भी कहते हैं, वो करीब हर एक घर में है। वहां पानी बहुत सहज से मिल जाता है, इसलिए 20 फुट से ज्यादा गड्ढा नहीं करते वो, पर उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो एक बार जब बच्चों के साथ पहले हम वर्कशॉप कर रहे थे, उन्हीं ने कहा था कि हमारी इतनी सारी पेट की बीमारियां होती है। फिर बच्चों के साथ एनालिसिस करते करते उन्हीं ने कहा कि हाँ, पानी से होता होगा। तो क्या करें, तो हमने कहा कि आप जो जिस सीजन में सबसे ज्यादा होता है वहां आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो वहां भी बच्चों ने कहा कि नहीं, उसको तो खोलना पड़ेगा रेंज से, ये हमसे नहीं होगा। फिर कुछ ने कहा कि नहीं, हम सीख जाएंगे। फिर सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जाके ब्लीचिंग पाउडर ले आए और गांव के जितने भी हैंडपंप थे सबको खोल के उन्होंने डिसइंफेक्ट कर दिया। नेक्स्ट। ये देखिए, एक दिन गांव का सब प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं। ये बात उतनी जम नहीं पाई है। बच्चे सिनेमा विनेमा देख के प्लास्टिक भयानक है ये तो मान लेते हैं, पर इसको ऑर्गेनाइज करना अभी भी उतना सॉलिड नहीं हुआ है कि रेगुलर बेसिस में आप प्लास्टिक को ना फेंकिए, कलेक्ट कीजिए। बट दिस इज एन एक्टिविटी विच कैन बी डन। हाँ, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये स्कूल ही में, प्राइमरी स्कूल ही में बच्चे खुद अपना वेट एंड हाइट मेजर कर रहे हैं और उससे वो अपने क्लास का और अपने से छोटों का, तो क्लास सोचिए कि क्लास 4-5 के बच्चे अपने क्लास का और 1-2-3 का, ऐसे वो लोग बीएमआई चार्ट बना रहे हैं। उसके बाद पेरेंट्स को बुला के डिस्कशन हो रहा है कि देखिए ये निकला है चार्ट से, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब ज्योग्राफी की कुछ बता देते हैं। देखिए, हमने देखा कि क्लास 6, 7, 8 में हर एक क्लास में थर्मामीटर का फोटो है, रेनफॉल रेन गेज का फोटो है। जब पता लगाया तो किसी ने एक्चुअली थर्मामीटर टेम्परेचर मापा ही नहीं है, रेनफॉल मापा ही नहीं, टीचर ने भी नहीं मापा है बहुत जगह। तो ये 8 गांव में हमने ऐसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर और रेन गेज खरीद के दिया। ये घर घर घूमता है, एक एक बच्चे के घर 5-6 दिन रहता है, वही मापते हैं और नोट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और महीने के एंड में सब डेटा ले आके
उसका वो चार्ट बनाते हैं, तरह तरह का मैथ्स करते हैं वो रेनफॉल और टेम्परेचर का। और अगर हम, हाँ, नेक्स्ट वन, ये देखिए सब बच्चे मिलके गांव का मैप बना, और गांव का मैप तरह तरह से उन्होंने व्यवहार भी किया। नेक्स्ट, एक संस्था है कलकत्ता में, DRCSC, वो लोगों के साथ 4-5 रूरल एनजीओ ने जुड़ के करीब 6-7 सालों से एक एक विषय को लेकर काफी डिटेल काम किया। यहाँ 10 विषय दिए गए हैं, ये लिस्ट आप देख रहे हो। और जैसे जैसे बच्चों ने काम किया, जो जमा, उसको लेकर ये संस्था किताबें लिखने लगी। तो ये 10 किताबें लिखी है आज तक, शायद उससे भी ज्यादा हो गए। ये नमूना है 2 किताबों का, एक पेड़ पर और एक इंसेक्ट। ये बंगाली और इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट, पल्लवी, यू वांट टू कम बैक? No, continue. ये उत्तराखंड में एक संस्था है, उत्तराखंड सेवा निधि। इन्होंने भी 1990 से ही क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए बहुत बढ़िया, उनके जो हिली, जो पहाड़ी इलाका है, उसके लिए बहुत सुंदर काम बच्चों के साथ किया था और किताबें भी लिखी है। बहुत साल तक उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में भी किताबें चलती थी। अभी शायद हालत जैसा होता है थोड़ा सा खराब। और कौन कौन ने ऐसा काम किया है? एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक होती है, भारत सरकार करती है, 93 से स्टार्ट हुई थी। और इसमें करीब 10 लाख बच्चे हर एक साल पार्टिसिपेट करते हैं। एक एक्सपर्ट टीम बनती है, वो एक मैनुअल बनाती है, हर एक स्टेट में चला जाता है। इससे ये एक तरह से जो पीपल साइंस मूवमेंट रहा है इंडिया में, सर्वभारतीय एवं हर एक राज्य में, उनका बड़ा वो कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग दिस अ सक्सेस और पार्शियल सक्सेस। और आज तक देखिए, ऐसे ऐसे विषयों पर एक नेशनल चिल्ड्रन साइंस कॉन्टेस्ट होता है। तो बहुत सारा एनवायरमेंटल इश्यूज है, और ये अभी भी चल रहा है ये। Yeah, I'll just come back on this. मैं जो ये नई तालीम का इतने सालों से काम है, अब मैं एक नई संस्था में ज्वाइन की हूँ पिछले 2 साल से। वहां पे ये प्रोजेक्ट चला रही हूँ, जल जंगल जमीन एंड क्लासरूम्स। बेसिकली जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी किताबें बनी हैं, जो भी रिसोर्सेज बने हैं, जो फिल्में बनी हैं, जो भी एजुकेशनल मटेरियल बना है किसी भी फॉर्म में, किसी भी भाषा में, हम इंडिया में एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ओपन एक्सेस रखना चाहते हैं। तो वो काम अभी चल रहा है एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर तक मैं ये लॉन्च कर पाऊं थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसके लिए भी आपके पास भी अगर रिसोर्सेज हैं इन विच एवर लैंग्वेजेस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू प्लेस इट। फॉर एग्जाम्पल जो सुजीत बता रहे हैं DRCSC या उत्तराखंड सेवा निधि की बुक्स, ये भी इस पार्ट रेपोजिटरी की पार्ट होंगी। वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। ये तो हमें एक कार्टून गिफ्ट किया गया था। केशव एक बड़े फेमस कार्टूनिस्ट हैं, हिंदू में कार्टून्स बनाते हैं। इसमें गांधी इज होल्डिंग पीस एंड द वर्ल्ड, एंड वी जस्ट वांट टू से कि what will make us happy, not ki you are inspired, but if children can do some activities which is linked to their life, their livelihood, they have fun, it is democratic, and they learn through those activities some of their academic concepts. That will be the real laughing Gandhi. Thank you so much. Thank you so much, Pallavi and Sujit. I think that was so informative, so descriptive. Thank you so much for sharing everything. We are open for questions, everyone. I know there were a few questions. Someone had asked, what is the name of the NGO which teaches grafting? If you have an answer to that, feel free to share. And Nita is asking, how can you contribute to Jal Jungle Zameen, Pallavi? And I think I've given your and Sujit's email for anyone who wants to reach out to them for anything beyond this. Thanks for your comment, Nita. Simi, I just answered how you could reach out to Pallavi and Sujit. Their emails are in the chat. We can take any, go ahead, Pallavi. No, I'm just reading the chat now. I see Murali, I see Sushma. So I'm just like, yeah, I'm acknowledging that I'm reading your messages. Yeah.
Lovely. Thank you so much. Someone's raised their hand. Feel free to come off of mute and ask your question. And then Ranjana, if you want Pallavi and Sujit to talk about living utopias, we can also do that next. Go ahead. Namaste. Good evening to you. I'm Sonia Nagpal from Hyderabad. And totally impressed by what you're doing and would certainly like to do the same in my school. So wanted to know what NGOs or organizations can you suggest in Hyderabad? Because there are so many things even we wish to go do, but I don't know, whether the teachers are trained enough to carry on those and bring it to the classrooms. So, the grafting question was also mine. Which NGO trains for grafting sessions? So, if you can help me with some organizations in Hyderabad, would be great. Thank you. Namaste. I have lovely people in Hyderabad to help you. I will connect through Amina. They work so well on seeds, on agrobiodiversity, very grounded people. And for years have been working on agrobiodiversity. There'll be fantastic resource people for you to help. So I'll send the names across. Lovely. Even hydroponics would be good if you can help with that. You ask them. I don't know. I'm not a Sure. Thank you. Thank you. Harshita, would you like to come off of mute? Yes. Hi. What are some of the common restrictions or barriers you find in this way of teaching? What are some of the common ones that are specific to this? If you could point out a few. The tyranny of a timetable. वो timetable फेंक दो बाहर स्कूलों से. That is my biggest appeal to you. Because even when I used to actually ask Sushma so many times, कैसे करते हो आप? कैसे मतलब कब एक महीना एक time निकालते हो? Because even finding 1 hour, I did it in 1 hour every week on a Wednesday and managed to do a lot. But you should see how upset people were of मेरा sports period चला गया, मेरा maths class चला गया, मेरा ये चला गया. So yeah, I mean, we are all under a certain kind of organic learning, and schools don't mix that well, but that is not the talk of today. We are very anti-school at this point. So, but we won't talk about it today. We are coming to a situation where we are very upset with school as an institution after many years of trying to deal with some. But yeah, so I would say biggest challenge for us is this, for me especially. I don't know what Sujit wants to add. No, एक तरह से तो the better person to answer this question is Sushma. Sushma. but मैंने जो काम दिखाया वो ज्यादातर स्कूल के बाहर किया है. स्कूल में कोशिश की है, थोड़ा बहुत हुआ है पर ज्यादा नहीं हो पाया. जैसे कि suppose we want children to do really good home garden. उसके तरह तरह के एलिमेंट. तो हमारी कोशिश तब थी कि स्कूल में हम सिखाएंगे, पर काम आप जाके तो घर में कीजिए, अपने पेरेंट्स सभी को इन्वॉल्व कीजिए. वो थोड़ी सी जमी थी, where the principals agreed to give us not 40-minute classes but 2-hour classes. 2 घंटा क्लास दीजिए, हम बच्चों को सिखा देंगे, फिर वो घर में जाके करेंगे. ऐसे कुछ संभव है. I don't know, Amina, do you want to let Sushma answer also? Because I see her raised hand. Yeah, sure. Sushma, if you'd like to add anything to the discussion. Actually, I didn't want to add to it, but I wanted to say something else. But however, I can say that you need to have a lot of flexibility, which Sujit has said. But provided this flexibility is kept and teachers are confident enough that they can, over a period of time, cover the curriculum with this kind of flexibility, I think they will get confidence, and management also has to help them. So if it is done accordingly, then lot of things could be done. First thing. Second thing which I wanted to ask Sujit and Pallavi was is that okay, Pallavi? Of course.
Yeah. Recently, I have come in contact with Dr. Kelkar. He practices naturopathy, and of course, he had been our donor and trying to tell us that naturopathy could be included in school curriculum, and we learned some of the techniques. This is regarding health reliance that we think of. Multiple things can be done, as Sujit has said, but there could be things where you can rely on through your skills, and you can use water therapy, proper diet plan, exercises, fasting. These are things which really do not need much, and you can keep yourself healthy, particularly in urban area where people eat a lot, uh, in middle class and higher middle class. Actually, we don't need it. And we know that obesity is such a critical problem, overeating. So there is a need of justice and proper nutritional food security. But at the same time, uh, using certain other ways to keep yourself healthy through naturopathy could also be one of the area where we can do it, like try it in schools. We have been doing it at school teachers level now, and it's giving good results. That's again an area where you can be, uh, you don't need much effort in terms of money or resources, but you can do a lot. Yeah, I just wanted to add. Thank you so much, Sushma. Thank you. Manisha, I know your hand was raised. Feel free to put in your question if you had one on the chat. And we have Ganesh's hand raised as well. But before we take Ganesh's question, I think I wanted to ask something that largely Mukesh and I were also discussing before this session, which was, are there mindset shifts, practices, tools that teachers or people who are in classrooms right now can take and start doing from as soon as tomorrow onwards, if they're really interested in productive work, experiential learning? What would be your advice there? Sujit, you want to go Uh, ahead? ऐसे तो many of the activities we showed are not difficult to do. हाँ, मुकेश भाई तो अभी शुरू कर रहे होंगे, और many people here might be doing at least the agricultural kind of activities. So it's not very difficult. But as Sushma is saying, as we know, that at least teacher log or अगर कुछ management है, so everyone has to agree and feel excited about it. कि चलो ये करते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, और अगर किसी से कुछ सीखना भी हो, in every area you will find people who are expert at some of these activities. Parents में से हो सकता है, among the parents itself you can find people who are experts, तो उनको बुला लेते हैं, क्लास में करते हैं. So I think it can be easily done if everyone starts. और एक चीज है, ये एक बार वो नई तालीम के जो एक तरह से पितामह है आर्य नायकम जी, वो नई तालीम स्टार्ट होने के कुछ ही दिन बाद एक लेक्चर दे रहे, और वो कह रहे थे बहुत मुश्किल है नई तालीम. मैंने कहा कि ये इजी है. इट्स नॉट इजी एट ऑल. टीचर हैज टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ लर्निंग, ये वो. बट देन ही सेज कि पर यार हौसला तो तुम्हें बच्चों से मिलेगा. So you have to allow the children to bring in their issues, raise a lot of questions, and when they start doing it, तब देखो कि वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, तब पूरे स्कूल के टीचर और मैनेजमेंट को भी हौसला मिलेगा. Yeah, Pallavi, if you want to add something. No, I mean, first you have to be excited, I guess. So if you have on your own come excitedly listening to these things, तो वहीं से ही start है. And then if you imagine कि ऐसे कर सकते हैं, तो you look for people. And अगर कुछ भी activity नहीं कर पा रहे हो, तो first activity start करो. Don't go the whole hog कि सबको relate कर लो. Activity start करने के बाद if you feel इससे हम academic कर सकते हैं, तो ऐसे step by step बढ़ेंगे. You will be surprised कि काफी कुछ कर पाएंगे. Yeah, Mukesh, sorry.
हाँ नहीं, थैंक यू सो मच, इट्स सो हेल्पफुल। तो बेसिकली मेरा सवाल ये था आप दोनों से कि लाइक स्कूलों के ऊपर ये जो पूरा प्रेशर रहता है पेरेंट साइड से या कम्युनिटी साइड से, कि कल को वो बच्चा जब स्कूल से जाएगा और जो स्किल रिक्वायर्ड है मार्केट के लिए या उसको अपनी लाइवलीहुड के लिए, वो स्कूल मतलब जिस तरीके से नई तालीम का हम प्रोडक्टिव वो देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी एक चीज़ है या कम्युनिकेशन स्किल्स पे जिस तरीके के इंग्लिश की डिमांड्स हैं, तो वो इन सब में कैसे मतलब फिट होगा? क्योंकि ग्राम स्वराज से तो ये है कि वो रूरल सेगमेंट में ही अपने उसी गांव के आसपास अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है। पर अगर वो इन फ्यूचर किसी शहर में जाना चाहता है या किसी जॉब में हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए जो सर्टन स्किल्स हैं उसको हम नई तालीम में कैसे देखते हैं, मतलब जो मॉडर्न कंटेक्स्ट। जी। तो एक तरह से सोचिए कि आपको लिविंग यूटोपिया कोर्स में आना पड़ेगा। पर संक्षेप में ऐसे कहूं, इन ब्रीफ, दैट वी आर ऑल एम्बेडेड इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, और हम ये मान ही गए हैं, सोचिए पूरे पृथ्वी में, कि ज्यादा दिन नहीं चले। पर ये तो पागल घोड़े में सवार है, वो दौड़ रही है जोर से। जो लोग उतरना भी चाहते हैं वो नहीं उतर पा रहे, जो इसको स्पीड को स्लो कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। एट द सेम टाइम वी नो दैट सामने ही क्लिफ है, हम सब गिर के मर जाए। तो अब आप कहिए कि इस समाज के लिए हम नई तालीम को बना देते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नई तालीम तो दूसरे समाज के लिए, वो एक गांधीयन समाज, वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नहीं है इस टाइप का। उसकी इंडस्ट्री अलग सी हो, नहीं, नहीं, जो गांधी का जो स्वराज है उसमें भी इंडस्ट्री रहेगी, पर वो दूसरे तरह की इंडस्ट्री रहेगी। उसमें एक तरह से सोचिए कि जो जो एक्टिविटीज हमने दिखाए, मेनी आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सो दैट विल बी अ मेन थिंग, राइट। और उस समाज की पॉलिटिक्स अलग होगी, उस समाज की कम्युनिकेशंस अलग होगी, उस समाज की इकोनॉमी अलग, लोकलाइजेशन होगा। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि आज के स्कूल में बाकी सबको ठीक रहते हुए हम नई तालीम कैसे घुसा देंगे, वी कैन ऑफर यू सम टिप्स, पर वो ज्यादा दिन नहीं चले। और दूसरा सवाल ये है कि आप अगर ये सब करेंगे किसी स्कूल में, कुछ ही दिन में पेरेंट्स लोग आके कहेंगे कि बंद कीजिए आपका स्कूल। क्योंकि जो गरीब पेरेंट्स भी हैं, उनको भी लगता है कि हमको तो वो औद्योगिक सभ्यता की सीढ़ी में ही चढ़ना है, हमको चांस नहीं मिला है, पर हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे को तुम अंग्रेजी सिखा दो, अंग्रेजी सीखना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी सिखा दो और एकदम स्कूल में अव्वल नंबर दे दो, जैसे वो भी वो सीढ़ी चढ़ सके। यद्यपि अगर आप थोड़ा प्रोब करेंगे तो पेरेंट भी मानेंगे उस सीढ़ी में जगह नहीं है, उसमें केवल 2% की जगह है, 95% के लिए जगह नहीं है। फिर भी तो मेरा 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 उत्तर ऐसा होगा कि अगर आप पूछे तो नई तालीम कहाँ जमेगी, मेरे ख्याल से मैं कभी कभी कहता हूँ कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में जमेगी। क्यों गढ़चिरौली जिले में जमेगी? क्योंकि वहां कुछ आदिवासियों के गांव है जो ऑलरेडी थोड़ा गांधीयन स्वराज की तरफ या ग्राम स्वराज की तरफ जाने लगे। इसलिए अगर उनसे बात की जाए तो वो शायद कहेंगे कि हाँ, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए। नहीं, शुक्रिया। और मेरा इससे एक सवाल और उभर रहा था, और बाकी ऑडियंस में से भी जो शाम मतलब अपना सवाल लाना चाहें, तो क्या नई तालीम बिना सोसाइटी से जुड़े हो सकते हैं? लाइक हम फिर से मतलब एक एक स्पेस में सिर्फ बच्चों के साथ काम कर रहे हो, तो क्या वो फिजिबल है जब तक कि हम पूरा वो ग्राम स्वराज या मतलब कम्युनिटी के साथ जुड़ के नहीं देखते? क्योंकि चाहे हम अनिल सूद गोपालन को सुनते हैं कि बेसिकली स्कूल समाज को आगे ले जाएंगे और समाज की भागीदारी से शिक्षा आगे जाएगी, तो वो अगर होगा, या पाउलो फ्रेरे की हम जब देखते हैं, तो आप इस पे भी अगर थोड़ा बात रखेंगे, समाज की क्या भूमिका होगी इस सारी उसमें, या माता पिता की भूमिका को? तो अभी मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो ग्राम सभा जो मेंडालेखा नाम की एक गांव गढ़चिरौली जिलों में 1985 से परीक्षा करते करते अब दूसरे गांव से सीखने लगे हैं, और ग्राम स्वराज, ग्राम सभा, ग्राम स्वराज, इनका इन पर काम होना जरूरी है।
जहां जहां लगता है वो थोड़ा आगे निकला है या लोगों की इच्छा है, वहां नई तालीम की शिक्षा भी जमेगी। ऐसा मुझे मुझे अभी ऐसा लगता है। पर बाकी जगह में जहां आप लोग थोड़े नए सिरे से कुछ एजुकेशन में ट्राई कर रहे हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स तो आप कर सकते हैं और करना जरूरी है। क्योंकि पल्लवी बार बार जो कह रही है कि केवल हाथ का काम नहीं है, हाथ का काम के साथ जो जो विषय सभी को सीखने चाहिए उसको जोड़ना है। और जो सुषमा जी ने कुछ हद तक तो किया है अपने स्कूलों में, तो वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। आप लोग जो आए हैं वो अगर कोशिश करते हैं तो वो कोरिलेशन जिसको कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट होना बहुत जरूरी है। आप पिता माता के साथ मीटिंग कीजिए, उनको समझाइए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरे गांव में जब बच्चों के साथ स्कूल के बाहर हम ये सब एक्टिविटी करने लगे, तो पहला ऑब्जेक्शन तो पेरेंट्स से आया, क्या बकवास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चे का, परीक्षा में अच्छा नंबर चाहिए। ये गरीब माता पिता है, हाँ, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं। तो उनके साथ मीटिंग करके दिखाना पड़ा कि देखो, बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर गया है, उनका मैथ स्किल इंप्रूव कर गया है, उनके सब्जेक्ट के स्किल भी इंप्रूव कर गए ये एक्टिविटीज करते करते। तब वो थोड़ा सा राजी हुए। तो ये है, ये सब टेक्निक या तरीके आपको भी, स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करने पड़े। जी, शुक्रिया। तो गणेश कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। गणेश, आप हाँ, माइक पर तो बोल सकते हैं, आप काफी देर से हैंड रेस किए थे। सॉरी, सो बेसिकली मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं अभी फिलहाल एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ। अनुभव करके मेरा प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन में वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन सेक्टर पे काम करता है। तो मैं ये जानना चाहता था, आप जो लोग काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा है, उसे देखकर ही मेरे एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे मुझे काम करना है आगे। तो एक वर्चुअल रियलिटी के जरिए मैं बच्चों को, जैसे कि मैं पुणे में हूँ, सिटी में हूँ, तो पुणे के बच्चों को पेड़ों के बारे में कैसे होता है, क्या होता है, वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दिखाता हूँ। बट क्या आपको, आपका स्टेक क्या है इस पे, और आपको कैसे लगता है कि नई तालीम इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकती है इस चीज को? जी, शुक्रिया गणेश। और अगर इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाएं पल्लवी, आप भी इस पे अगर रखें, तो कि मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं, लाइक अब एआई की दुनिया में हम आ गए हैं वहां पर। I want to answer this, and I know it's getting recorded, but I want to answer it very bluntly. क्योंकि मैं जिस संस्था में मैं अभी काम कर रही हूँ, वहाँ पे मेरे पे काफी प्रेशर है कि नई तालीम या प्लेस बेस्ड एजुकेशन को आप एआई के थ्रू देखिए। एंड व्हाई डोंट यू यूज एआई, यू नो, ग्रांट्स ही ग्रांट्स होंगी इफ यू स्टार्ट राइटिंग थ्रू एआई, क्योंकि हम अभी ग्रांट बेस्ड वर्क करते हैं, तो एवरीबडी नीड्स मनी, this is where the money is, why are you not matching the two? And I haven't formulated my thoughts so much, but I right now know this. एक बार गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू को 1945 में, एंड उस चिट्ठी में 3 लाइन मुझे हमेशा मुझे याद रहती है। वो उसमें लिखा था कि पहले तो हम अपनी बेसिक रियल नीड्स समझ लें। इफ वी हैव आवर रियल नीड्स इन ऑर्डर, देन उसके ऊपर कुछ भी आए, इट डजंट मैटर। व्हाट आर आवर रियल नीड्स? मुझे हमेशा लगता है, इफ I am able to explain through this idea of being a teacher, and I'm putting it in quotes, कि teacher मतलब as teacher children we are all learning from each other. But अगर मेरा ये काम है कि मैं ये किसी तरह से बता दूं कि healthy food, soil को healthy रखना, अपने environment में destruction नहीं करना, ये अगर मेरा काम है, कि बेसिक हेल्दी फूड अगर मेरी रियल नीड है, बेसिक हेल्दी एयर मेरी, जो दिल्ली वाले आए हैं उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर हेल्दी एयर इज माय बेसिक नीड, अगर वाटर मेरा साफ है, देन उसके बाद जो टेक्नोलॉजी चिपकाना चाहते हो चिपकाओ, आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आर यू टीचिंग मी और आर यू लर्निंग विथ मी ऑन वेज वेयर आई अंडरस्टैंड कि इससे मेरी सॉइल खराब होगी और इससे नहीं होगी? इफ दैट इज टिक मार्क, I don't have any problem with AI. But if AI or virtual reality, sorry, I am finding like this is one of my pet peeve, because हमेशा मुझे आता है कि आप वर्चुअल रियलिटी से नेचर को कीजिए। एंड आई एम नाउ स्पीकिंग इन कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे फ्रॉम स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम, यू नो, नेचर भी, आप नेचर वॉक करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर। इट्स वेरी एंथ्रोपोसिनिक, इट्स वेरी कि नेचर मुझे क्या दे सकता है।
बट राइट नाउ आप क्या दे रहे हो नेचर को, आप कैसे कंजर्व कर रहे हो उसको, आप कैसे अपनी सोसाइटी को जस्ट और इक्वल, वेयर आर यू कॉलिंग आउट पीपल व्हेन देयर इज सो मच ऑफ इनजस्टिस। हम तो नुक्कड़ नुक्कड़ पे अभी इनजस्टिस देख रहे हैं, विच वॉज नॉट देयर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। लाइफ हैज रियली चेंज फॉर चिल्ड्रन राइट नाउ, बट वो एंगेजमेंट है ही नहीं सोसाइटी से, बिकॉज हमारे पास एवेन्यूज ही नहीं है। हम इतना डरते हैं फॉर सो मेनी थिंग्स। सो ऑल दिस इज लिंक टू, सो वर्चुअल रियलिटी इफ मेरा डर खत्म कर दे, वर्चुअल रियलिटी मुझे विश्वास दिला दे कि मैं दूसरे का साथ सॉलिडारिटी के साथ खड़ी हो जाऊं, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ वर्चुअल रियलिटी। दिला रहा है, we use these forums for our use, we have to use them, not let them use us. And if you have your eye on that, then I think Ganesh will be fantastic. But if you don't have an eye on that, it is going to use you, which we are seeing now. I'm just like deep sea mining का इतना सब पढ़ के आ रही हूँ कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, because technology is helping them deep sea mine, and we are going to lose our coral reefs and so many things we are going to lose in another 5 years. So we also have to play a thoda sa, whether we like it or not, हमें activism का role play करना ही है as educators. So very Thank you true. so much for Thank you that, Pallavi. Thanks, Ganesh. We're just coming to a close, so I wanted to actually ask you to share a little bit more about Living Utopias. People are very interested to join it. And as you are sharing, Suhani will put out a feedback form on the chat. Please fill that out before you leave. And over to you, Pallavi and Sujit. तो अभी हमने 14th आइटरेशन चलाया था, एंड फ्रैंकली वी गॉट वेरी लो रिस्पॉन्स, यू नो, लाइक आई थिंक 10 लोग आए थे पूरे इंडिया से। एंड हमें एक मुंजल यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी नई खुली है, उन्होंने हमें थोड़ा फंडिंग में सपोर्ट की थी। तो आई जस्ट वांट टू से कि हम हर साल ये कोर्स चलाते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस ड्विंडल होती जा रही है फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि एवरीबडी इज अंडर क्राइसिस एंड स्ट्रेस। सो वी ऑल्सो डोंट वांट टू से कि हाँ देखो हम कितने अमेजिंग बातें कर रहे हैं, आज जाइए अपनी जॉब छोड़ के 5 दिन और ये कीजिए। सो वी हैव बोथ, सुजित एंड आई, वी हैव बीन थिंकिंग कि अब हम कोर्स को जिस फॉर्मेट में चलाते हैं रेसिडेंशियल, वैसे नहीं चलाएंगे, बिकॉज हमें भी बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, फिर थोड़ी सी फंडिंग के लिए ढूंढना पड़ता है, फिर एक जगह जाके चलाते हैं, वहां पे कम लोग आते हैं, तो सबका ही हौसला मतलब थोड़ा कम हो जाता है। तो we do want to put it out, not as virtual reality but as an online course, and we are working towards it कि हम एक training of trainers भी चला पाए। इसी उसमें डिम्पल, वरुण बैठे हैं, मुरली बैठा है इसी उसमें, these are all our students of Living Utopias। तो ये अगर नेक्स्ट फैकल्टी बन जाए लिविंग यूटोपियाज के, तो हम तैयार करने के लिए काफी ये साल एफर्ट डालना चाहते हैं। तो ये साल तो हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के मोड में जाना चाहते हैं, पर अगर ऐसा लगे, क्योंकि अभी सब लोग पूछ रहे हैं बच्चों के साथ लिविंग यूटोपियाज चलाओ, विच इज माय इंटरेस्ट एरिया, अगर ये बातें बच्चों के साथ कर लें, तो देन वी विल ऑफर इट दिस ईयर इन अ डिफरेंट फॉर्म विथ चिल्ड्रन, हाई स्कूल स्टूडेंट्स। If in that you're interested, you want to call us, we can have a small setting through Circle Labs or whichever one you would like. Awesome. Thank you so much for that. In our feedback form also, you can express interest in knowing more about the course, and we'll share your mails with Pallavi and Sujit so they can send you more information. So do fill out the form as well. I think Manisha wanted to share a song. Please feel free to. Okay, Manisha, you can come off of mute if there's no link. And just after that, I think we'll be in a good place to close. Do fill out the feedback form. Thank you so much, Pallavi, Sujit, and Mukesh for doing this session. I think this was so good, so wonderful. चिड़िया पीछे आगे फिर उड़ जाती, दाना लाती, ची ची चू चू करती है, मेरी खिड़की पे एक चिड़िया पीछे आगे। Okay, that was great. Thank you so much.
Awesome. Thank you so much for joining, everyone. Mukesh, anything you want to say before we close? Hey, thank you so much. I just a wish for this after this session के वो सिर्फ गढ़चिरौली तक ना रहे, मतलब नई तालीम हमें इसको मतलब पूरे देश में ले जाएं, बल्कि दुनिया को ऐसी शिक्षा और नई तालीम की ज़रूरत है। और आज जितने भी लोग जुड़े, मतलब हो सकता है कि आपको पूरे आइडिया में मतलब ना लगे, पर उसमें से कौन से पीस पे आप काम कर सकते हो, लाइक प्रोडक्टिव एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और ये नाम बहुत आजकल फैंसी तौर पर लाए जा रहे हैं, पर क्या रियल टाइम्स में बच्चों तक जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सुजीत एंड पल्लवी। आई विल टेक सो मेनी इनसाइट्स फॉर दिस सेशन एंड डेफिनेटली ट्राई इन माय स्पेस एज वेल। तो उमंग में हम ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं और नई तालीम को भी इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश रहेगी। सो थैंक यू सो मच अमीना और द सर्कल टीम एज वेल एज सुजीत एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक्स अ लॉट। Thank you. Thank you, everyone. Have a great evening. Bye-bye. Bye bye everyone.